to see all of your faces. So I'll give you like 2 minutes to get decent, to get camera ready. Just do that, all of you. I know all of your cameras work. There is nobody whose camera doesn't work. 5 minutes is too much. मैं कहीं जाना है. मैम वो नहीं हुआ क्या आज, ये क्या बोलते गूगल फॉर्म वाला? First, I will teach you something. If we get time, we'll do that too. ठीक है मैम, एक सेकंड क्या कर रहा हूँ। गूगल फॉर्म वाला क्या था? गूगल फॉर्म पे जो क्विज आज से शुरू होने वाला था वो भी हो सकता है. फर्स्ट आई नीड टू नो हाउ मच टाइम वी विल नीड फॉर दिस. आई डोंट नो. अगर तुम लोग मेरे साथ इंटरैक्ट नहीं करोगे तो आई डोंट हैव मच टू टीच. इंटरैक्ट करोगे तो इट विल, द क्लास विल बी एंगेज्ड. अदरवाइज अगर टाइम बच जाता है तो वी विल डू दैट. So all of you, I'm giving you 2 minutes. Get decent, get camera ready, put your phone somewhere. उसको लेके इधर उधर घूमो मत. Just put it somewhere so that you can concentrate on me, I can concentrate on you. There is an option here which says raise hand. I don't know if it is appearing on mobile or not, but it is appearing in the systems. So yes, on 11:33, I would like everybody's camera on. I can see all the screens simultaneously here because I need some kind of interaction for this session. Okay? Just get decent, get ready quickly. Some of you, everybody looks like a grown up now, I must say that. Still, I can only see 4 faces. What about everybody else? Okay, 3, 4, 5. Shivam, can you please put your mobile someplace that I can see your face properly? I can't see your face properly. It's nice to see all of you. Everybody looks refined and all. Just keep your cameras on for the whole session. बेटा इतना data नहीं लगता है तुम लोगों का जितना तुम्हें लग रहा है. Trust me, I monitor my data every day and I take more classes. Yes, everybody. Where are your faces? मुझे बस तुम लोगों की शक्ल देख के भूलना नहीं था. I need that for the whole session. Yes, Ishika Joshi, Karthik, Sachi, Archit, Mehak, Kartikeya, Vishesh, Ishak, Nupur, Keshav. I can't see your faces. I don't know why. Yes, now it's coming on. All right. बाकी सब मुझे सिर्फ कार्तिकेय और महक दिख रहे हैं यहाँ पे. I can't see anybody else. मैम मेरा ऑन है. मैम मेरा भी ऑन है कैमरा. Why can't I see people? Just give me 1 second.
I can only see some of you at one time. Maybe I need to enable some kind of setting. Excuse me. Yes, now I can see some of you, but again, I can't see all of you. I'm going to just rejoin the meeting for a minute. Maybe there is some network issue here. Yes, now I can see people. Yes, now most of you are visible. I still can't see Mehak. Okay, I can see Mehak also. I can't see Nupur. I can't see Tanya, Karthik, Yogendra, and Sachi. Yes, I can see Yogendra also now. Okay. Why don't you people look happy? Try to be a little bit more cheery than you are. कोई तुम्हें सजा थोड़ी मिली है, पढ़ाना मुझे है, तुम्हें तो बस चुपचाप बैठ के देखना है. ओके, द फर्स्ट थिंग इज कि हम लोग बात कर रहे हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी. सबसे पहली चीज तो मैं ये पता होनी चाहिए इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी किन चीजों से अफेक्टेड होती है. एनीबडी, इकोनॉमी, हाउ डू यू जनरेट इकोनॉमी? यस, कम ऑन जतिन बताओ, इकोनॉमी आती कहां से है, लाते कहां से हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, so काम करके क्या काम करते हो? जतिन बताओ, थोड़ा डिटेल में बताओ. आई कांट हियर यू. मैम प्राइमरी सेकेंडरी मैम टर्शरी मैम ये एक्टिविटीज करके. अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज करके. अच्छा ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? इशिका जोशी जल्दी से बताओ, प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? कोई सी भी एक प्राइमरी एक्टिविटी. मैम एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर ठीक है. कोई भी सेकेंडरी एक्टिविटी. सुनिधि बताओ. मैम कोई भी इंडस्ट्री. कोई एक इंडस्ट्री का नाम तो बताओ मुझे. मैम लाइक क्लॉथ इंडस्ट्री. मैम कॉटन. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ठीक है. व्हाट इज टर्शरी एक्टिविटी? यस अनमोल, कोई सी भी एक टर्शरी एक्टिविटी का एग्जांपल दो मुझे. मैम एजुकेशन रिलेटेड लाइक schools and all or hospitals. Okay, transport is also a tertiary activity. I can say that. ठीक है. अब देखो, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नेशनल इकोनॉमी, तो इन तीनों चीजों के बेसिस पर एक इकोनॉमी जनरेट होती है. दिस इज हाउ पीपल अर्न मनी. दे ईदर वर्क इन इंडस्ट्री, दे ईदर डू सम एग्रीकल्चरल वर्क, और दे प्रोवाइड सर्विसेज. ब्रॉडली ऑल द सर्विसेज और ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कैटेगराइज्ड इन दीज थ्री काइंड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. हम लोगों ने ये देखा था, बहुत अलग अलग तरीके के कैटेगराइजेशन है, प्राइवेट, पब्लिक,
जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव, ये किस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो हमने बहुत सारे कैटेगराइजेशन देखे, बट बेसिकली अगर देखा जाए तो यू नीड टू डू समथिंग टू जनरेट इकोनॉमी। आप यहाँ पर बैठे बैठे यहाँ पर बस सोचने से यू कैन नॉट जनरेट एनीथिंग। So you are generating economy by doing some kind of work or economic activity or activity which can earn you money. घर पे जो आप काम कर रहे हो, household chores, they are not economic activity. आप घर पे अगर खुद के घर पे झाड़ू पोछा लगा रहे हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, लेकिन आप किसी और के घर पे जाके झाड़ू पोछा लगा रहे हो, इट बिकम्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट बिकम्स अ सर्विस, पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर। अब लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, तो जब हम नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, इट मींस दैट इट हैज टू क्रॉस सम काइंड ऑफ सर्टेन बैरियर। नेशनल में जब हम बात कर रहे हैं तो एक लॉन्ग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और अगर बहुत लेमन टर्म्स में समझे तो इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन अगर गुजरात में हो रहा है तो वी इन एमपी कैन वेयर दैट क्लोथ। हाउ कैन वी वेयर दैट क्लोथ? दैट क्लोथ वाज made from the cotton in Maharashtra, manufactured in Gujarat and sold in MP. अब ये तीनों चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ द गुड्स। हाउ इज द ट्रांसपोर्ट टेकिंग प्लेस? जो रॉ कॉटन है वो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जा रहा है? इट कैन गो वाया 3 थिंग्स, मोस्टली रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, or fourth way is waterway, but waterway cannot be accessed everywhere because there needs to have water. We need to have water. It can only be accessed where there are 2 ports working. International अगर हम maritime trade की बात कर रहे हैं तो it involves sea ports. आप यहाँ MP में आप जो है sea port तो बना नहीं सकते because we do not have sea. बट इन जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड है और जितने भी जो पोर्ट एरियाज हैं, ये डेवलप्ड इसीलिए हुए हैं क्योंकि वहां से जो मटेरियल इंपोर्ट होता है, एंड माइंड इट, वाटरवेज आर द चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। एवरीथिंग एल्स इज वेरी कॉस्टली। इवन हमें लगता है बस का टिकट जो है सस्ता होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्टिंग बल्क मटेरियल, वाटरवेज आर द चीपेस्ट वे। तो जितना भी मेजॉरिटी ऑफ द इंपोर्ट that happens in the country, it happens through ports. So इससे क्या होता है? जो waterways हैं, they become very important. The ports become very important. They become a center of transport. अब पोर्ट की इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेन चीज कौन सी ऐड हो जाती है कि वहां पर कितना इंपोर्ट हो रहा है, वहां उस पोर्ट से कितना इंपोर्ट हो रहा है। अब सेम जो दूसरी जगह से सामान आया वो पोर्ट के थ्रू कंट्री में एंटर हो रहा है, एट द सेम टाइम जो सामान हमारे पास है वो उसी पोर्ट के थ्रू किसी और कंट्री में जाएगा। अब उस पोर्ट पे काम करने के लिए यू नीड अ डॉक जहां पर मशीन जो शिप्स होती हैं वो डॉक करती हैं, विच स्टे देयर। वहां पर काम करने के लिए आपको लेबर चाहिए। भाई ट्रक से सामान उतारने के लिए 2 लोग तो लगेंगे नहीं, यू विल नीड अ लॉट ऑफ लेबर, यू विल नीड अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यू विल नीड इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली वहां पर ऑफिस होता है, वहां पर ऑफिसर्स होते हैं, वहां पर सरकार के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, दे डू द चेकिंग वर्क। कस्टम ड्यूटी वहां पर लगाई जाती है, सारा सामान चेक होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन द पोर्ट वर्क व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट। तो अगर हम केवल वाटरवेज की बात कर रहे हैं तो देयर आर अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर जनरेटेड सोनली जस्ट बिकॉज दे नीड टू बी डन। भाई ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी तो आपको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ये हो गई, एंड दैट इज व्हाट बिकम्स द लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफलाइन मतलब कि इसके बिना जो है चीजें नहीं चलेंगी, क्योंकि अगर पोर्ट नहीं होगा हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठप हो जाएगा। भाई इंडिया की जो प्रोस्पेरिटी है, हमने लास्ट ईयर भी देखा था, भाई हमारे पास खासियत क्या है? हमारे पास सी पोर्ट भी है, हमारे पास माउंटेन भी है, हमारे पास प्लेटू रीजन है जहां पर मिनरल्स हैं, एंड द सॉइल इज फर्टाइल, देयर इज अबंडेंस ऑफ पॉपुलेशन, वर्किंग पॉपुलेशन इफ आई मस्ट से। तो ये सारी चीजें जो है ये इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। अब इनको जोड़ने के लिए क्या जरूरी है? लाइफलाइन। एक एग्जांपल मैंने दिया वाटरवे। अब इसी को आप अलग अलग तरीके से देख लेंगे तो जहां पर वाटरवे नहीं है वहां पर सबसे ज्यादा काम क्या आता है? रेलवेज। आप कितना ही सामान देख लें, रेलवेज का जो रेल नेटवर्क है इट इज इन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, एंड द ब्रिटिशर्स दे स्टार्टेड रेलवेज इन इंडिया, एंड रेलवेज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द majority of the material that is transported in this country. For example, if the coal is being unearthed in Bihar, it can go anywhere through that railway. रेलवे की स्पेशल जो उसे मालगाड़ी कहा जाता है,
जो ट्रांसपोर्ट फ्राइट होती है, इंग्लिश में इट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट फ्राइट, इट इज ऑल्सो अ वेरी मेजर फैक्टर इन कीपिंग द इकोनॉमी अलाइव। जो बल्क मटेरियल है आप उसको रेलवेज के थ्रू कहीं भी भेज सकते हो जहां पर भी रेलवे लाइन है। यस सौरभ, यू वांट टू आस्क समथिंग? मैम हर कंपनी की है, मतलब हर कंपनी अलग अलग फिर अपनी वो ट्रेन ओन करेगी क्या? नो नो नो, वी कांट से दैट। सी, जो ट्रेन है और जो रेलवे सेक्टर है, इट इज कंप्लीटली पब्लिक, इट इज नॉट प्राइवेटली ओन्ड। इंडियन रेलवेज है हमारे पास रिलायंस रेलवेज नहीं है। तो मैम हायर करनी पड़ेगी मतलब फिर? देखो, तुम ट्रेन में जाते हो तो तुम जब ट्रैवल करते हो तो ट्रेन खरीद लेते हो क्या? नहीं। तुम टिकट खरीदते हो। तो अगर तुम्हें कुछ सामान भेजना है तो तुम क्या करोगे? हाँ, पैसे मतलब देके पैसे बुक करा देके देंगे। सामान भेजेंगे। Exactly, you will pay some money, you will book it for some place। और देखो, ऐसा नहीं होता है that it is done privately। For example, हमारे जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में देखा that there are basically clusters where all these things happen। For example, मुझे अगर किसी जगह से शुगर केन बुलवाना है, just give me 1 second। Yes. If I want to buy some sugar cane, मेरी sugar cane फैक्ट्री है, वो वहां से लगभग 100-150 किलोमीटर दूर है, और उस क्लस्टर में there are many sugar cane processing plants। तो वहां क्या होता है, कोई एक थर्ड पर्सन एंड इंटरमीडियरी ही टेक्स द चार्ज कि मैं आपको शुगर केन अवेलेबल कराऊंगा। मैं शुगर केन अवेलेबल कैसे कराऊंगा कि मेरी यहाँ पर कि आई हैव गुड ट्रांसपोर्ट लिंक्स, मैं यहाँ पर जो है लेबर हायर करूंगा, वो लेबर यहाँ पर शुगर केन डालेगी, मैं यहाँ पर लेबर हायर करूंगा, वो शुगर केन यहाँ से उतारेगी, और जितना बीच में फ्राइट फेयर लग रहा है, जितना उसका रेलवे का भाड़ा लग रहा है, वो मैं दूंगा, और उसमें वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं। दैट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हर इंडस्ट्री ओनर के पास सिरदर्द क्या रहा कि उसको बस, जिसे कहते हैं ना हिंदी में ठेकेदार, कि उसको एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है जो उसे शुगर केन अवेलेबल करा सके। अब मुझे पूरी ट्रेन भर के शुगर केन थोड़ी चाहिए, मुझे फॉर एग्जाम्पल 1 टन शुगर केन चाहिए, और वो जो ट्रेन है वो 10 टन को ट्रांसपोर्ट कर रही है। तो अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 10 अलग अलग फर्म्स के साथ कोलैबोरेट करेगा, हर किसी को बेचेगा और बीच में प्रॉफिट कमाएगा। और यही लॉजिक जो है तुम रोडवेज में भी लगा लो। रोडवेज में जो ट्रक से सामान जाता है, जरूरी नहीं है कि वो किसी एक ही फर्म को जाए या किसी एक ही कंपनी को जाए, इट कैन गो टू मल्टीपल कंपनीज। देखो, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये जो हम लोग ऑर्डर करते हैं सामान मिंत्रा से। कभी किसी ने मिंत्रा, अमेजोन, यहाँ से सामान ऑर्डर किया है? करा ही होगा, एवरीबडी डूज दैट दीज डेज। अब जब हम लोगों ने ये सामान ऑर्डर किया तो आपने तो जो है एक इतना बड़ा पैकेट ऑर्डर किया। अब वो ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए लेके बैठेंगे कि ओ माय गॉड ये पैकेट तो वीआईपी में जाना चाहिए, इसके लिए अलग से फ्लाइट का टिकट बुक करो। They don't do that. They have consignments कि फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से लेके भोपाल तक एक कैरियर जाना है, एक ट्रक जाना है। उस दिन के जितने भी ऑर्डर्स हैं जो उस प्लांट से प्रोसेस हुए हैं, पूरे ट्रक में वो लोग भर देते हैं। वो सामान जाता है भोपाल, भोपाल से वो सामान उतरेगा, फिर वहां पर जो है भोपाल में एक अलग ट्रक बैठेगा जो कहाँ निकलेगा, गुना के लिए निकलेगा। तो उस सेंटर पे गुना के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो उसे एक ट्रक में भरते हैं। वहां से दूसरा सामान फॉर एग्जाम्पल जा रहा है विदिशा, ओके, एक ट्रक विदिशा जा रहा है, तो जितना सामान विदिशा में जाना है उसका एक अलग ट्रक बन जाएगा, एक अलग कंसाइनमेंट बन जाएगा। इट माइट बी अ रिलेटिवली स्मॉलर ट्रक। फिर गुना से जो है वो वहां पर चला गया, गुना में जो हमारे पास सामान आया वहां पर उसने एक छोटी सी लॉरी करी कि आज तो केवल इतना ही सामान आया है अमेजोन का, उसने सारे पैकेट्स उसमें भरे, फिर वो आके राघवगढ़ के ऑफिस में आया, एंड फ्रॉम देयर इट कैन गो टू एवरीवेयर। फिर जो कैरियर होते हैं जो मोटरसाइकिल पे हमारा सामान डिलीवर करने के लिए आते हैं, वो अपने बैग्स भरते हैं कि मुझे गेल में इतना सामान आज डिलीवर करना है, इतना सामान जेपी में डिलीवर करना है, इतना सामान जो है एनएफएल में डिलीवर करना है। वो 5-6 लोग अपना अलग अलग बैग लेके जाते हैं। समझ पा रहे हो? दिस इज अ होल सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम है जिससे ना इकोनॉमी पूरी चल रही है। मैंने सामान ऑर्डर किया, मेरे पास तो वो 5 दिन में आ गया। हमें ऐसा लगता है कि हम दुकान में जाते हैं वो तो 5 मिनट में ले लेते हैं। 5 दिन क्यों लग रहे हैं? ये सारी प्रोसेसिंग में 5 दिन लग रहे हैं कि सामान यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, क्योंकि सारा ट्रांसपोर्ट टुकड़ों में होता है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान दिल्ली से मेरा पार्सल लेके चला कि मैं तनुश्री मैडम के घर पे देकर आऊंगा। इट डजंट हैपन लाइक दैट।
और इसी जो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बड़े स्केल में लगा के देखो, इसी कॉन्सेप्ट को उल्टा करके देखो कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटी सी प्रोड्यूसर हूं, आई एम मेकिंग समथिंग एंड आई वांट टू सेल दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरा पापड़ का बिजनेस है, मुझे अपने पापड़ बेचना है। पापड़ क्या, मैं अपने घर पे पापड़ बना रही हूँ, अब मैं किसको कांटेक्ट करूंगी? जो लोग पापड़ बेचते हैं, क्योंकि भाई मेरे पास उतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है, आई डोंट नो इनफ पीपल कि मैं हर किसी को जाके बोलूं अच्छा तुम्हें पापड़ चाहिए मेरे घर से जाके पापड़ ले आओ। नो, आई कांट डू दैट। आई टॉक टू हुम? अ मार्केटर जो मार्केटिंग करता है। आई टॉक टू अ ट्रांसपोर्ट पर्सन जो ट्रांसपोर्ट करता है। मैं अपने घर पे बैठ के, मेरा काम इतना है कि मैं घर पे बैठ के केवल पापड़ बनाऊं, उसको बेचने का काम मैंने दूसरे लोगों को दे दिया। तो इकोनॉमी इट्स नॉट अ सिंगुलर थिंग, इट इज बेसिकली अ चेन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। जो कॉटन कल्टीवेट कर रहा है वो कपड़े नहीं बना रहा है वहां पे बैठ के, उसका काम कितना है कि मेरे खेत में कॉटन सही से उग जाए। जो कपड़े बना रहा है उसका काम ये नहीं है कि एक एक के घर पे जाके बेच कर आए, उसका काम है कपड़े बनाना। और जो बेच रहा है वाइस वर्सा, उसका काम नहीं है कि वो जाके कॉटन देख कर आए कि मेरा एक एक कॉटन का प्लांट कैसा है। इकोनॉमी एक पूरी चेन है, उस चेन को लिंक करने के लिए एक लाइन लगती है, और उस लाइन के बिना उसकी लाइफ नहीं रहेगी। दैट इज व्हाट इज लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमी इज अबाउट। अब जब हम इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स देखते हैं, इसके अंदर बहुत सारे थियोरेटिकल चीजें हैं कि ना रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क है, रोडवेज का इतना बड़ा नेटवर्क है। अब रेलवेज को लेके और रोडवेज को लेके इसने थोड़ी सी और बात करी है, दैट रोडवेज का जो नेटवर्क है इट इज बेसिकली मोर एक्सटेंसिव। क्योंकि रोड बनाने के लिए क्या लगता है? एक रोड रोलर, थोड़े से ईंट पत्थर, थोड़ा सा डामर, बन गई। रेलवे ट्रैक बनाना इतना आसान है क्या? रेलवे ट्रैक बनाने के लिए और जो है इंटेलेक्चुअल पावर लगती है। अगर आपको एयरपोर्ट बनाना है आपको और एक्सपर्टीज चाहिए, अगर आपको सी पोर्ट बनाना है तब तो बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज चाहिए। तो जितनी आपको एक्सपर्टीज चाहिए कोई भी चीज बनाने के लिए, उतना उस चीज को बनाना मुश्किल होता है। हम लोग अगर चाहे तो रोड बनाना इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा डामर कंक्रीट डाल के हम अपने घर के बाहर भी एक रोड बना सकते हैं। भले उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी लेकिन कच्ची रोड तो हम भी बना सकते हैं। एंड दैट इज वाई द रोड एक्सटेंशन, जो रोड नेटवर्क है इट इज मोर एक्सटेंसिव। आप आपके घर के बाहर जो है आप अपने घर की छत पे हेलीकॉप्टर का पैड नहीं बना सकते। इट विल बी वेरी ट्रबलसम कि आपका जो भी अमेज़न का ऑर्डर आ रहा है वो आपकी छत पे लैंड हो रहा है, राइट, विद द हेलीकॉप्टर। बट यू हैव अ रोड, आप अपने घर के बाहर आपकी एक रोड होती है, वो बिल्कुल डोर टू डोर एक्टिविटी है। डोर टू डोर आके वो आपके घर पे आपका सामान देकर जा सकता है। इमेजिन करो एक ऐसे घर जगह पे आप रहते हो जहाँ पे 1 किलोमीटर तक रोड नहीं है, कच्ची रोड भी नहीं है, पक्की रोड भी नहीं है, बीच जंगल में रह रहे हो। हाउ विल यू मैन्यूवर आउट ऑफ इट? हाउ विल एनीबडी कम टू योर हाउस? 1 किलोमीटर सुनने में बहुत कम लग रहा है, लेकिन जब चलना पड़ेगा ना डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा लगेगा। रेलवे ट्रैक, हर किसी के घर के पीछे रेलवे ट्रैक है क्या? हर किसी के घर के पीछे रेलवे स्टेशन है क्या? यहाँ तो बहुत दूर तक रेलवे स्टेशन नहीं है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो रेलवेज की कनेक्टिविटी कंपैरेटिवली कम है, एयरवेज की कनेक्टिविटी और कम है क्योंकि उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा चाहिए। पोर्ट्स जो है या वाटरवेज है उनकी कनेक्टिविटी और कम है क्योंकि उसके लिए आपको बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिफाइंड चाहिए, और हर रिवर को आप नेविगेट नहीं कर सकते। भाई अब क्या हर किसी नदी नाले में थोड़ी आप जो है टाइटैनिक जैसी शिप घुसा सकते हो? यू कांट डू दैट। So for that you need a lot of things। तो ये सारी चीजें इन चीजों पे मैटर करती हैं। तो जब हम इनकी इंपॉर्टेंस वाइज इन्हें मार्क करेंगे तो हमें ये सब पता लगेगा। आप ये देखोगे मेजर सिटीज दे आर कनेक्टेड विद वाइडर रोड्स। हम लोगों ने बहुत सारे तरीके के रोड देखे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जो ये सड़क सिटी की टाउन जो रोड होती है, कुछ जो गाँव की रोड्स होती हैं, सबकी क्वालिटी डिफरेंट है। नेशनल हाईवे की जब हम बात कर रहे हैं तो वो मेजर सिटीज को कनेक्ट कर रहे हैं। नेशनल हाईवे जहां पर होता है इट इज फास्टर टू ट्रैवल देयर। जहां पर 4 लेन है, कितने लोगों ने जो है 8 लेन हाईवे देख रखा है? 8 लेन, 6 लेन। यस कार्तिकेय, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? मजा आता है कि नहीं उसमें ट्रैवल करने में?
मैम मैं तो देखने में गया था मैम, तब देखा था मैम, बहुत ही ज्यादा accident। Yes, Saurabh, any thoughts on that? Saurabh? Yes, Vishesh, any thoughts on that? मैम बहुत तेज गाड़ी चलती है। आप तेज क्यों चला सकते हो? क्योंकि सामने से कोई गाड़ी नहीं आएगी। यू श्योर ऑफ इट? अभी जो हमारे इधर जेपी वाला भी जो हाईवे जाता है, उस पे भी आप आराम से 100 and 120 चला सकते हो। इवन आई ड्रोव एट 120 देयर। मैं यहाँ पर गेल के कैंपस में 120 चला सकती हूँ क्या? Of course I can't do that. भले ही रोड यहाँ पर अच्छी है, लेकिन you do not drive fast in such situations because it is dangerous. Because you never know आसपास से कौन आ जाएगा। हाईवे पे आपको कोई खेलता हुआ बच्चा नहीं मिलेगा। डोमेस्टिक रोड्स पे वो मिल सकता है। तो जो आप देखते हैं कनेक्टिविटी लेवल है। अब अगर मान लो आपकी गाड़ी 140 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, तो आपका सामान जल्दी पहुंचेगा। और अगर उस लेन पे 6 गाड़ियां चल सकती हैं, तो आपका ट्रैवल फास्टर होगा। कभी ट्रैफिक जाम में अगर तुम लोगों को फंसने का मौका मिला हो, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ कंजेस्टेड थिंग्स कैन गेट। तो जितनी आपकी रोड मॉडर्न, प्रोडक्टिव और इस तरीके की होंगी, द ट्रांसपोर्ट विल बी फास्टर एंड ईजियर। Right, there was a time, you of course do not remember, I have been there when Amazon started working, Flipkart started working. वो लोग 15 दिन की एस्टिमेटेड डेट देते थे और उसके बाद भी सामान लेट हो जाता था, बिकॉज द नेटवर्क वॉज नॉट दैट रोबस्ट। उन लोगों के पास उतने ऑर्डर नहीं हुआ करते थे। यूज्ड टू वेट आउट कि थोड़ा और सामान हो तो हम भेजेंगे। ट्रांसपोर्ट का पूरा लिंक जो है थोड़ा सा स्लॉपी था। बट नाउ आई ऑर्डर हियर, आई कैंसिल समथिंग, वो 2 दिन बाद मुझे यहाँ पे लाके दे देता है। जो प्रोडक्ट एक्चुअली पैकेट बैंगलोर में हुआ है, वो बैंगलोर से दिल्ली जाके फिर मेरे पास आ जाता है। बिकॉज द ट्रांसपोर्ट हैज बिकम मोर रोबस्ट। उन लोगों के लिए अब इवन फ्लाइट पे सामान भेजना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। इट्स ईजियर फॉर देम, उनके टाई अप्स हो गए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इकोनॉमी को बहुत इफेक्ट करती हैं। तो जब हम लोग रोड्स की बात कर रहे हैं, एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रोड्स बनाता है, जो कि विच इज फॉर द पर्पसेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑन द बॉर्डर्स। स्टेट हाईवेज हैं, नेशनल हाईवेज हैं। अब इन सब के क्या है, बाकी सब जो है ट्रिविया है। ट्रिविया मतलब क्या है कि ये इतने किलोमीटर की है, ये वाला हाईवे है, वो वाला हाईवे। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपको बस पढ़ना पड़ेगा। और अगर याद करने में परेशानी हो रही है, तो जस्ट हैव अ लुक कि उस रूट पर क्या क्या है। भाई अगर आपको मेजर सिटीज पता है, अगर आप मैप वर्क सही से कर रहे हो, तो ये चैप्टर तो बहुत आसान है, क्योंकि इसके अंदर केवल मेजर सिटीज मेंशन्ड है। आपको बहुत ज्यादा मैप वर्क करना नहीं है, बस मेजर सिटीज ही मेंशन्ड है। वहीं पर जो है, भाई आपको अगर मुंबई नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं कर पाओगे मैप वर्क में, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज भी है, वहां पर पोर्ट भी है, वहां पर एयरपोर्ट भी है, सब कुछ है। तो जो मेजर चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए कि ये किधर लोकेटेड है। टूरिज्म की यहाँ पर बात हो रही, भाई जो जगह जितनी कनेक्टेड होगी, अगर मेरे लिए इजी है वहां पे पहुंचना, तो आई विल गो एंड हैव अ वेकेशन देयर। भाई मैं यहाँ से अगर चाहूं तो फ्रॉम वेयर आई लिव, महेश्वर आई कैन गो इजिली बिकॉज द रोड कनेक्टिविटी इज गुड। बट मैं अंडमान इतनी आसानी से नहीं जा सकती, because I'll have to travel very far, and that is an island. I'll have to take a ferry, I'll have to take a flight, which is relatively more difficult for me. मुझे यहाँ से अगर अभी इस समय if I want to go to जम्मू और उत्तराखंड, it will be difficult for me, क्योंकि वहां पर snowfall होता है, landslide होता है, the ways get blocked. It becomes difficult to travel there. हम में से बहुत सारे लोग जो है, पता है एमटी घूमना सबसे आसान है, because it is a plain area. यहाँ ज्यादा कुछ है ही नहीं जो आपको इधर से उधर रोक सके। बट यू कांट फील द सेम थिंग व्हाइल गोइंग इन नॉर्थ ईस्ट। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम बिकॉज देयर आर सो मेनी हिल्स टू नेविगेट। इवन रोडवेज से भी वहां पर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। भाई जब वहां पे 4 पहाड़ आएंगे और गाड़ी ऐसे ऐसे 20 की स्पीड पे घूमेगी, आप बोर हो जाते हो, अरे यार इतना धीमे चल रहा है, 10 किलोमीटर चले आधा घंटा हो गया। So tourism becomes difficult अगर आपके transport links कम है। Tourism is also one of the very important ways by which we generate economy. ठीक है? I hope I have covered the spirit of the chapter. जो इसके facts हैं
वो आप लोग पढ़ लीजिए. इफ देयर आर समथिंग एल्स दैट वी नीड टू कवर, विल डू दैट. पर अब आप लोग मुझसे पूछोगे, मेरी तरफ से चैप्टर की स्पिरिट कवर हो गई है. फैक्ट्स, ट्रिवियाज वो सब तुम लोग देख लो, कोई ऐसी चीजें समझ नहीं आ रही है पूछ लो, फिर हम इस चैप्टर को भी क्लोज आउट करते हैं. और एक तुम लोगों ने क्या बोला था, पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज पर भी बात करेंगे. और कुछ करना है तो बता दो. See, everybody can ask. It doesn't matter कि ना आपको अकेले को प्रॉब्लम है और बाकी सबको समझ में आ गया है. I don't mind that. We have to revise eventually. आप जो बोलेंगे उस चैप्टर से शुरू हो जाएगा. Anything, anyone? Just have a look. If there is something, we can cover it again because we have a lot of time. और जैसे ही आप लोग बोलोगे कि बस अब हमारा हो गया, मैं तुम्हारा एक प्री बोर्ड ले लूंगी. ये बात याद रखना. ये क्विज भी साथ में. यस महक. बेटा कैन यू प्लीज टाइप इट आउट? आई कांट हियर यू प्रॉपरली. यू वांट टू डू ग्लोबलाइजेशन कार्तिकेय. ठीक है, कोई मत बोलना कि हो गया. ओ वाओ सौरभ, मैं तो रीड ही नहीं कर सकती, तुम लोग क्या लिख रहे हैं. आई एम द एडमिन ऑफ दिस चैट ग्रुप. Mehak, can you please type out nationalism of Europe? Okay, what exactly do you want to cover in nationalism of Europe, Mehak? Specify a little bit for me. Starting, the nationalism of Europe starts with French Revolution. भाई हमने क्या देखा था कि हर इवेंट का एक कॉज होता है, वो एक इवेंट हो जाता है और उसके बाद उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है. यहाँ पर इवेंट क्या था? नेपोलियन, द राइज ऑफ नेपोलियन, सॉरी द फ्रेंच रेवोल्यूशन. उसका इम्पैक्ट क्या था? द राइज ऑफ नेपोलियन. फिर दूसरा इवेंट क्या था? द राइज ऑफ नेपोलियन. और उसका इम्पैक्ट क्या था? दैट ही स्टार्टेड इन्वेडिंग द कंट्रीज ऑफ यूरोप. देखो कई बार ऐसा होता है ना कि अ लीडर कम्स इनटू पावर और वो बहुत सारे आपको सपने दिखाता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए लिबर्टी लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे चेंजेस लेकर आऊंगा. One of these people was Napoleon. Napoleon was a very charming personality. He had a lot of authority and because of the authority he had, उसने लोगों के अंदर की जो फीलिंग थी ना कि हम फ्रेंच हैं, we are French, तो उसने वो फीलिंग, he started igniting those feelings. When he started igniting those feelings, तो और जो लोगों के पास फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स थे, थोड़ा सा पीछे जाओ कि लिबरल है, फ्रेटरनाइजिंग, फ्रेटर्निटी है, सारी चीजें हमारे पास, सब तरीके का फ्रीडम है. अब नाउ दे स्टार्टेड शोइंग इट ऑफ टू अदर कंट्रीज. जहां पर स्ट्रिक्ट मोनार्की थी, जहां पर उनके पास कोई फ्रीडम नहीं था, वो आइडियाज लेके दे स्टार्टेड कॉन्करिंग द प्लेसेस. और लोगों को ऐसा लगा कि अरे नेपोलियन ही केम हियर टू फ्री अस. नेपोलियन हमारा एक मसीहा है और वो हमारे पास जो है अच्छी चीजें लेकर आया है. और नेपोलियन बेसिकली ही वाज अ डेस्पॉट. ही वांटेड टू कॉन्कर टेरिटरी फॉर हिज ओन पावर. जो वर्ड नेपोटिज्म आया है वो नेपोलियन की तरफ से ही आया है. वो करता क्या था? ही यूज्ड टू विन अ प्लेस और वहां पर अपने रिश्तेदार बिठा देता था कि अब तुम रूल करो. दे डिड नॉट नीड टू बी केपेबल, दे जस्ट नीड टू बी रिलेटेड टू हिम. So he started conquering places. वहां के लोगों को initially लगा that he is doing good for them, but eventually they found out कि वो basically बस अपने रूल लगाना चाहता है. It doesn't mean कि वो रूल उन लोगों के काम के लिए है या नहीं. तो उसी चीज को लेके अब नेपोलियन, अब देखो सीधी सी बात है, अगर तुम मुझसे बोलोगे कि आपकी एक करेंसी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एक करेंसी है और सबकी वैल्यू अलग अलग है. किसी की करेंसी की वैल्यू 1 रुपए, किसी की 100 रुपए, किसी की 50 रुपए. तो मैं सोचूंगी कि अरे दिन भर बैठ के कौन कैलकुलेट करता रहेगा. अगर तुम मुझे टैक्स दे रहे हो तो मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा? तो बोलूंगी सारी करेंसी हटाओ, जो मैंने बोला एक करेंसी करो, मुझे नहीं चाहिए ये सिरदर्द. दैट इज व्हाट ही डिड बेसिकली. वो सारी चीजों में यूनिफॉर्मिटी लेकर आया
और उस यूनिफॉर्मिटी की वजह से देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वर सॉल्व्ड इन दिस रीजन। जर्मनी की जब हम बात करें थे तो जर्मनी ऐसा था, अलग अलग टुकड़े में लोग अपने हिसाब से बढ़िया रह रहे थे, लेकिन नेपोलियन यूनाइटेड देम, उसने 39 स्टेट्स बनाए और उसने बोला कि अब ये जो 39 प्लेसेस छोटे छोटे स्टेट्स हैं ये आज से जर्मनी हो गया। बट जब नेपोलियन हार गया आफ्टर ही लॉस्ट इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, तो ये जो यूरोपियन पावर थी उन लोगों ने उस चीज का फायदा उठाया और अपनी अपनी टेरिटरी वापस खींच ली अपने पास, वहां पर अपने रूल्स फिर से लगा दिए, बट दे डिड नॉट टच जर्मनी। ये हम लोगों ने बात करी थी। दिस इज हाउ दिस चैप्टर स्टार्टेड। और इसके अलावा अगर तुम्हें कुछ लगता है तो हम उसे नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। सो नेशनलिज्म, बेटा मैं आपको एक लिंक भेज देती हूँ, सॉरी वो लिंक मैं आपको कई बार भेज चुकी हूँ। एक बार ना सीबीएसई एकेडमिक खोल के देखो, उसमें करिकुलम में रिवाइज्ड करिकुलम है, उसको एक बार देख लो तुम लोग। और जो उस दिन बताए थे वो तो खैर वही है। उस एक फाइल को तुम चाहो तो एक प्रिंट आउट लेके रख लो, नहीं तो एक दिन निकालो, एक पेज लगेगा, उसे लिख के रख लो ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट, कि क्या क्या मार्क करना है। इट विल टेक barely 10 minutes ऑफ योर टाइम। खुद करोगे ना तो थोड़ा सा याद भी रहेगा, यहाँ पर मैं बार बार रटवाती रहूंगी तो मैं याद नहीं रहेगा, भूलते जाओगे, कंफ्यूज होते जाओगे। ठीक है, विल कंटिन्यू दिस इन नेक्स्ट क्लास। और क्विज तैयार रखना, जिस दिन भी थोड़ी सी सनकेगी उस दिन क्विज शुरू कर देंगे, और उस दिन नो एक्सक्यूजेस ऑब्वियसली। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड सायरा। सीबीएसई एकेडमिक, इसमें रिवाइज्ड करिकुलम देखो क्लास 10th का। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।